हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, सो टुडेज कंटेंट इज वर्क डन इन द रिएक्शन thermal reversible isothermal reversible process and isothermal irreversible process. So we will discuss about these two processes, work done and different parameters. Work done in the reaction we will calculate. Okay. Now let's start with this question. If 1 kilocalorie of heat is added to 1.2 liter of oxygen in a cylinder of constant pressure at a constant pressure of 1 atm. Okay, now the volume increases to 1.5 liter. So calculate delta E and delta H of the process. Come on guys. The question is, if 1.0 kilocalorie of heat is added to 1.2 liter of O2 in a cylinder of constant pressure at a constant pressure होना चाहिए था of 1 atm, the volume increases to 1.5 liter. So calculate delta E and delta H of the process. So time is 120 seconds. Come on everyone. अच्छा, सवाल से शुरुआत होती तो बहुत धमाकेदार रहता है, नहीं? सवाल में क्या खासियत है, आपको बिल्कुल झकझोर देता है, आपको इंसाइट कर देगा। तो बस फटाफट हो जाओ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 मिनट बहुत आसानी से कर लोगे। 2 मिनट मैंने क्यों दे दिया यार, ये तो बहुत लड्डू सवाल है। चलो अब दे दिया है ना। लेट्स सी नाउ डिस्कस इट। एक बात हमको क्लियर है बच्चों कि ये एट अ कांस्टेंट प्रेशर जो ये हीट दिया जा रहा है, वी नो दैट हीट इन्वॉल्व एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच। डू यू ऑल नो दिस वन? डू यू ऑल नो दिस दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी? So it must be equal to 1.0 kilocalorie. Yeah, it must be equal to this figure. Now, next one we have to calculate delta E. We know that delta H is equal to delta E, or you can say delta U plus P delta V. Here we know that the delta V means final minus initial. Final is 1.5 liter and initial is 1.2 liter. It is 0.3 liter delta V and pressure is 1 atm. So we have to calculate delta E. So delta E is equal to delta H means 1.0 kilocalorie minus P delta V. P is 1 atm. It is in atm, 1 atm and volume is 0.3 liter. So 1 into 0.3 atm liter. ओके बच्चों, सो ये कितना हो गया? ये हो गया 0.3 इंटू 101.325 जूल। हमको आंसर देना है किलो कैलोरी में सपोज, तो ये जूल में आ गया तो बाई 4.18 इतना क्या होगा बच्चों? कैलोरी। हमें किलो कैलोरी चाहिए, बाई 1000 कर दो, इतना हो गया किलो कैलोरी। बताओ यस और नो गांव वालों, आंसर आ जाए कि नहीं? ये 1 किलो कैलोरी है माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा ई इज इक्वल टू, डेल्टा ई मतलब डेल्टा यू। डेल्टा ई और डेल्टा यू बोथ आर द सेम थिंग्स। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच मीन्स 1 किलो कैलोरी माइनस पी डेल्टा वी। प्रेशर इज 1 atm and delta V is equal to 0.3 liter. ओके, आप सभी लोग बताओ समझ में आया कि नहीं? अकॉर्डिंगली मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार। चलो मैं फिर से बता देता हूँ। क्या हुआ कि पहली बात, एट अ कांस्टेंट प्रेशर रिएक्शन इज गोइंग ऑन, सो delta H is equal to QP and this is equal to 1 किलो कैलोरी।
1 kilocalorie. So it's very clear should be very clear to everyone. And we know delta H is equal to delta U, and delta U and delta E are the same thing, plus P delta V at a constant pressure. I think you all might know about this. So delta E is equal to delta H, which is 1.0 kilocalorie, minus P delta V. Pressure is 1 atm, and delta V, final volume is 1.5 liter, initial was 1.2, so difference is 0.3 liter, so it's atm liter, and we know that 1 atm liter is equal to 101.325 joule. We know this one, so we have to calculate all figures in kilocalories. Suppose either we can do this one in joule or we can convert this one in kilocalorie, whatever. ओके, सो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, 4.18 से डिवाइड करेंगे, ये कैलोरी हो गया, डिवाइड बाई 1000, इट विल बी किलो कैलोरी, मल्टीप्लाई हियर एंड गेट योर आंसर. ओके, नाउ लेट्स ट्राई अनदर प्रॉब्लम. सवाल खूब बनाना है. कई बार तो मुझे मन में आता है, क्योंकि मुझे ये लगने लगा है कि जब तक तुम सवाल नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक तुम IITN और डॉक्टर नहीं बनोगे, और ये होने नहीं दूंगा मैं. मेरे मन में आता है कई बार तुम लोगों से शपथ लेवाऊँ. मैं शपथ लेता हूँ कि ऐसे करके रोज़ मैं इतना सवाल बनाऊँगा, नाग सर ने जो बोला है पूरे क्वेश्चंस ट्राई करूँगा या करूँगी, व्हाटएवर. मेरे मन में आता है भाई, क्योंकि लगता है कि ये अगर तुमने कर लिया ना तो फिर तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता. ऐसे हो जाओ ना कि मतलब तुम्हें हमेशा सवाल बनाने का मन करता रहे. Whether you are talking about the chemistry or physics or maths or even biology. So मेरे मन में आता है कि तुमको मतलब खाना खाने के बाद टहल ले हो तो टहल के आए सवाल बना लिए, जब भी सोना है तो सोने के पहले 2 सवाल बना लें, उठते ही तुरंत सवाल बना लें. मतलब इतना फ्लो में आ जाओ, मन कर रहा है क्वेश्चन ट्राई करने का, और ये फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैं आप लोग बताऊँ कि मैंने 11th-12th में बायोलॉजी और मैथ्स दोनों पढ़ाई किया, राइट. तो जब मैं बायोलॉजी पढ़ता था तो मुझे याद करने का मन करता था. ऑल्दो आई वाज जस्ट डूइंग ऑल दोज थिंग्स वेरी reasonably, very logically. I just try to connect them logically. Biology person, and I have scored 96 marks in out of 100 in my 12th board examination in biology, in fact. So ये था मेरे साथ. और जब मैं मैथ्स पढ़ता था, मैं सवाल लाने का मन करता था. तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जो करते हो ना वही करने का मन करता है, वही हैबिट हो जाती है और वही आप कर जाते हो. यू शुड ट्राई मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉब्लम्स. एंड किसी ने पूछा सर कितने प्रॉब्लम हम बनाएं, तो कितने बनाएं से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बनाएं और बनाने के मूड में रहें, और जो बनाएं उनमें से हम सीखें. सपोज मैंने कहा 50 बनाओ, और आपने जो क्वेश्चन ट्राई किया बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, अब 50 नहीं 25 बना. तो इम्पोर्टेंट है क्या वो 25 सवाल जो अच्छे लेवल के थे वो आपको पूरी तरह समझ में आ गया, कि आपने उसको अपने से जो अलग से इंटरटेनमेंट नोट्स बनाया है, या मेमोरी कार्ड या जो भी कह लो नाम, नोट्स अलग से बनाया है, क्या उसमें आपने नोट कर लिया, या आप अब उस पर सवाल आएगा तो कर लोगे. इज इट ये हो गया तो दैट्स गुड. So I cannot fix myself the actual number of the problem. It depends on the difficulty level of the problem. बायोलॉजी के प्रॉब्लम ट्राई कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, केमिस्ट्री में इनॉर्गेनिक कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वही जब फिजिकल बनाओ थोड़े कम हो जाएंगे. तो डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम, बट यू शुड डेवलप अ टेंडेंसी, यू शुड हैव अ हैबिट टू ट्राई प्रॉब्लम्स. मेरे मन में कई बार आता है कि आप लोगों को रेजोल्यूशन दिलाऊँ, कसम खिलवाऊँ, शपथ स्वीय, सर आई विल ट्राई मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एज इट इज़ पॉसिबल फॉर मी, राइट. चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग करोगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप इसको करोगे तो डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाओगे. ये मेरी बात आज तुम कहीं नोट कर लेना. अगर मैं रोज़ प्रॉब्लम ट्राई करता रहूँगा या रहूँगी, जैसे सर बता रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स में, तो मैं प्रॉब्लम शुरू कर दिया करना, तो तुम मान लो तुम्हारा सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो चुका है. अब ये क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग. व्हाट इज डेल्टा ई व्हेन 2 मोल ऑफ लिक्विड वाटर वेपराइजेज at 100 degree centigrade? The heat of vaporization delta H of water at 100 degree this much.
अब देखो इस तरह का सवाल है सपोज, हाँ, तो ये सवाल आपने ट्राई किया, आया या नहीं आया, बट ये एक ही बार होना चाहिए ना, आगे तो आपको हमेशा ही आना ही चाहिए, राइट। सो व्हाट इज डेल्टा ई? डेल्टा ई बताना है आपको। व्हेन 2 मोल ऑफ लिक्विड वाटर वेपराइजेज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, द हीट ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच, देखो हीट ऑफ वेपराइजेशन को डेल्टा एच लिख रहा है, वाई, बिकॉज ये एट अ कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है, नहीं तो हीट डेल्टा एच दोनों सेम चीज थोड़ी ना होता है, इज गिवन एच। सो जस्ट डू इट बच्चों, बताओ वैल्यू क्या होगी। टाइम इज 2 मिनट्स 120 सेकेंड्स। अब इस ये देखो, या तो मैं थियरी पढ़ाऊँ या क्वेश्चन के माध्यम समझाऊँ। मेरा मानना है कि क्वेश्चन ट्राई करके समझना बेस्ट वे होता है, दैट्स वाई आई एम फॉलोइंग माई वे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कोशिश करो तो पूरा टूट पड़ो इसके ऊपर, तो टूट पड़ो बच्चा लोग। ओके बच्चों, सो लेट्स सी नाउ। आप लोगों ने कोशिश कर लिया, दैट्स वेरी गुड। मैंने कहा ना कि जब आप बहुत डेस्परेटली किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हो या ना हो, बट अगर हो गया तो आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा, और नहीं हुआ तो इतना बुरा लगेगा कि फिर वैसे सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। सो बोथ आर द विन विन सिचुएशन। लेट्स सी, हम एक इक्वेशन लिखते हैं, 2 मोल लिक्विड वाटर देखो तुम तो कुछ सीखना हो कैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ थॉट कि अच्छा मुझे ऐसे प्रॉब्लम को ऐसे ट्राई करना है। 2 मोल लिया मैंने, 2 मोल यहाँ आ गया। डेल्टा एच वेपराइजेशन हमको दिया हुआ है, डेल्टा एच, तो इसमें कितना, ये पर मोल दिया है, इसमें 2 मोल है, तो कितना इन्वॉल्व होगा ये 40.66 इंटू 2 किलो जूल। क्या आपने 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चों? आप भूल तो नहीं गए 2 से मल्टीप्लाई करना? ये भूल गया तो फिर कितनी बार भूलना है? ओनली वंस, सिर्फ एक बार। वाई मल्टीप्लाई बाय 2 बिकॉज वी हैव 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड दिस इज किलो जूल पर मोल। ओके बच्चों, सो व्हाट इट वुड बी, इट इज 12 1 2 चौके 8 8.32 किलो जूल। ओके, देखो ये प्लस होगा, क्यों? हम लिक्विड को गैस बना रहे हैं, प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक, इट विल बी प्लस, राइट। इतना हमको देना पड़ेगा। हमको डेल्टा ई निकालना है। वी नो द इक्वेशन, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। हमें ये करना है। कैसे? ये तो बार बार कर रहे हैं, वही तो मैं सेम चीज़ बार बार कर रहा हूँ। देखो अभी कितना आसान हो गया, हमें पी डेल्टा वी निकालना है। आपको मालूम है बच्चों, गैस के सामने लिक्विड का वॉल्यूम टेंड्स टू 0। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू गैस। एक मोल पानी, लिक्विड पानी का वॉल्यूम होता है, अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml एट 18 ml, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml 18 ml लिक्विड वाटर की, और यही अगर गैस बन जाए तो एस.टी पर उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर। कैन यू कंपेयर दिस टू फिगर? नो, इट्स वेरी स्मॉल, इनसिग्निफिकेंट, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। The volume of liquid is almost tends to 0. I mean, if you calculate delta V means volume of product minus volume of reactant. What we are saying here, in product we have gas, in reactant we have liquid. So we can consider the volume of liquid tends to 0 with respect to volume of gas. Okay. And but here the volume is will not be to 22.4 liter per mole. No, because 22.4 liter is only for STP, standard temperature and pressure. Here it is 2 mole and at 100 degree centigrade. So by using PV is equal to nRT, volume of 2 moles, R की वैल्यू 0.0821 into temperature is 100 degree centigrade means 373 Kelvin, by pressure is 1 atm. Whenever we will use 0.0821 R की value and the value of pressure as atm, so this volume will be in liter. So we can calculate the volume in liter, and this is for 2 moles of water gas has formed. तो अभी उस पर वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे, डेल्टा ई निकालना है। डेल्टा एच वी नो दिस वन, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। प्रेशर इज 1 atm एंड वी कैन कैलकुलेट, है ना। ये आइडियल गैस मान लें तो पी वी इज इक्वल टू
nRT है, सो P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NGRT कर लें, क्योंकि हमें पहले पढ़ा हुआ है। डेल्टा NG कितना आएगा, 2 मोल, किसके लिए, गैस के लिए। यहाँ 2 मोल है, 2 माइनस 0, बिकॉज हियर देर इज नो गैसियस मॉलिक्यूल्स। 2 माइनस 0 2 R। हमको आंसर किस में चाहिए, H किस में है, जूल में है। H अगर जूल में है तो R की वैल्यू लेंगे, R की वैल्यू लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, 8.314। ओके, ये ध्यान रखना आपको, R की वैल्यू जूल के लिए 8.314, कैलोरी के लिए कितना लेते हैं, 2 लेते हैं, एंड टेम्परेचर विल ऑलवेज इन केल्विन, सो इट 373 केल्विन। ये हमारा किस में आंसर आ गया, जूल में, और ये हमारा किस में दिया है, किलो जूल में। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, ये भी किलो जूल बन जाएगा। डेल्टा ई सॉल्व कर लो। हेलो बच्चों, हेलो, बताओ मामला क्लियर है, बताओ भाई बच्चा लोग, मज़ा आया कि नहीं। 2 तरीके, या तो हम P डेल्टा V से कर लें, लेकिन रियली वो लंबा तरीका है, हम लोग P डेल्टा V की जगह डेल्टा NGRT कर लें, है ना। अब ऐसा सवाल तुम दोबारा गलत करोगे, तुमको पकड़ के बहुत मार दूंगा मैं कितनी बार गलती करेगा यार। और तुम्हें अलग से नोट करना चाहिए, अच्छा मुझे ऐसे प्रॉब्लम को ऐसे ट्राई करना है, इसको ऐसे ट्राई करना है, कितनी बार गलती होगा। और एग्जाम में यही सब सवाल आते हैं, नया तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। चलो भाई पढ़ते हैं हम लोग। वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इन ओपन क्लोज्ड वेसल, जो भी है ओपन वेसल है, क्लोज्ड वेसल है, तो वी ऑल नो दिस। वर्क डन निकालना है, राइट। किसी केमिकल रिएक्शन में तो क्या करना है हमको पता ही है, मैं एक बार बस रीडिंग कर लेता हूँ, ये तुमको दिमाग में आ जाए बात। कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अभी जो बताया वही सेम चीज़ है, तो हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। वर्क डन किस में निकाल रहे हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में, तो चेंज इन वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। बच्चों ये प्रोडक्ट कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। देखो रिएक्टेंट कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, इन दोनों का वॉल्यूम टेंस टू 0, तो डेल्टा V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस। तो अगर गैस का कोई भी एक भी मॉलिक्यूल है, एक भी मॉलिक्यूल है या सारे हैं, एक भी है या सारे हैं, तो फिर ये हमारा काम कर जाता है। लेकिन अगर लिक्विड है, सॉलिड है, अगर मान लो कोई कहे कि ए सॉलिड है, बी सॉलिड है और ये सी सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, तो फिर आपको इसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए, मास दिया होगा तो उससे वॉल्यूम निकल जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग डेल्टा V निकाल लेंगे। कैसे, हमको डेंसिटी और मास पता होगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो फ्रॉम वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्लियर, हमको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बट अगर गैस है तो गैस के सामने सॉलिड और लिक्विड से, सॉलिड को बुलाओ, सॉलिड इधर आओ, तुम्हारा वॉल्यूम कितना है, कोई गैस पूछ रहा है, सॉलिड वाला शर्मा गया, कह रहा भैया क्या करवा जान के, वॉल्यूम बहुत कम है। आर यू गेटिंग मी। तो बच्चा लोग अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो डेल्टा V जो होता है वो गैस के करस्पॉन्डिंग होता है, तो वर्क डन P डेल्टा V जो होता है वो डेल्टा NGRT के बराबर होगा। वर्क डन क्या होता है, माइनस P डेल्टा V, तो माइनस डेल्टा NGRT हो जाएगा। क्लियर, वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा NGRT, मतलब गैस के मॉलिक्यूल कितना चेंज हो रहा है, ये रिलेशनशिप वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड वी जस्ट डिवाइड इट। ग्रेट, बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखो भाई, अगर अच्छा ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अगर बच्चों हम लोग सिर्फ गैसियस कंपोनेंट हों तो ये हम लोग करेंगे, हमने देख लिया है, ओके, वही सेम चीज़ है, सब सिर्फ गैस ले लिया है। नाउ क्वेश्चन ट्राई करना इसके ऊपर, और यू ऑल रेडी। अगर सब गैसियस हो या कोई भी एक गैस हो तो वो वाला हम लोग यूज करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NGRT। ध्यान रखो बहुत काम आने वाला है एग्जामिनेशन में। एक्चुअली हम लोग हमेशा मूड में होते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV या डेल्टा V, वटेवर, या डेल्टा V। तो हम लोगों को ये ध्यान नहीं होता कि ये केमिकल रिएक्शन में ये जो वैल्यू है माइनस डेल्टा NGRT के बराबर हो जाएगा, ये वो ध्यान नहीं होता है, बट यू शुड।
चलो क्वेश्चन ट्राई करो, तो बहुत आसान सवाल है। डिड्यूस वेदर ईच ऑफ द क्वांटिटीज, आपको बताना है डिड्यूस वेदर ईच ऑफ द क्वांटिटीज Q, W, डेल्टा E एंड डेल्टा H is positive, 0 or negative, is positive, 0 or negative for adiabatic expansion of ideal gas into vacuum. Deduce whether each of the quantities heat, work done, delta E and delta H is positive, 0 और नेगेटिव फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इनटू वैक्यूम। ये सवाल बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ओ माय गॉड, बस ट्राई कर लो फटाफट। समय आपके पास 2 मिनट का है, 2 मिनट्स। आजकल टाइम ज़्यादा देने लग गया हूँ मैं। बहुत बढ़िया बच्चों, लग जाओ फटाफट मेरे लाडलों लाडलियों। चलो टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलिए लेट्स डिस्कस इट। ठीक है चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा। ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ना। तो बच्चों क्या क्या हमको पता है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। हियर द वर्क इज डन इन वैक्यूम। डू नो वैक्यूम? सपोज करो ऐसा कोई कंटेनर है, बुधान समझो। इस कंटेनर में यहाँ अंदर गैस भरा हुआ है, ठीक है, और इसका हम एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, ये एक्सपेंड होगा ऐसे। और बाहर P एक्सटर्नल जो है कुछ नहीं है, इसमें कोई गैस नहीं है, 0 है, बाहर कोई गैस नहीं। कितना बच्चों? 0। अबे 0 कर दोगे तो वर्क डन क्या आएगा? 0। एंड कहा एडिएबेटिक, ठीक है ना, एडिएबेटिक मतलब डेल्टा Q इज ऑल्सो इक्वल टू 0। जस्ट यूज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। एंड वी नो दैट कि हमारा ये 0 है और ये 0 है। अभी बेचारा क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो Q 0, W 0, डेल्टा E 0। अब डेल्टा E 0 है तो डेल्टा H तो 0 होगा ही होगा ना बच्चों, क्योंकि डेल्टा H क्या होता है? डेल्टा E प्लस P डेल्टा V ना। अब ये भी 0 है और ये भी 0 है ना, प्रेशर ही 0 है ना बच्चों, ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो ऑल आर 0। So this question has been asked so many times in exams, है ना। वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो सवाल। ये अगेन ये मोटा तगड़ा खाली दिख रहा है बहुत आसान, है ना। तो अब तुम लोगों को डरने कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को थर्मो में भारी इंटरेस्ट आ जाना चाहिए। और इसमें जो कमी होगी, जिसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, मेरी बात समझ लेना, सिर्फ सवाल नहीं बना रहे हो तो कसम खा लो, नाग सर ने जो बोला उसको पालन करो। मैंने कहा गुरु को सरेंडर कर दो। मैं तो तुमसे कसम दिलवाना चाह रहा हूँ, जाके आज लिख लेना कॉपी में कि मैं कसम खाता हूँ कि आई स्वेयर कि सर जो बोले मैं करूँगा, वो ये कि सवाल बनाऊँगा या बनाऊँगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। क्या लिखा है? फॉर द कंबस्शन, तो सवाल लंबा है कुछ नहीं। फॉर द कंबस्शन ऑक्सीडेशन किया जा रहा है 1 मोल ऑफ लिक्विड बेंजीन, द हीट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज गिवन बाई दिस। वाह है। तो व्हाट वुड बी द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम? ओह माय गॉड, ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान है, लड्डू है यार। चलो बहुत अच्छे। अब ये क्वेश्चन का टाइम देता हूँ आपको मैं 90 सेकेंड्स का, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। ओह माय गॉड, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमें एट अ कांस्टेंट प्रेशर हीट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन, वी हैव टू कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। मैं समझ गया, तुमको डेल्टा H दिया हुआ है, मतलब हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर दिया है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे पूछ रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम क्या बोलते हैं? डेल्टा E। और P डेल्टा V क्या हो जाता है इसमें रिएक्शन में? डेल्टा NGRT हो जाता है। बोलो रे पगला, ये हमको दिया हुआ है, कितना दिया है? -780,980 780,980 दिया है, कैलोरी में दिया है। डेल्टा E हमसे पूछा गया है। इससे आसान सवाल भी दुनिया में होता है क्या? डेल्टा NG, यहाँ कितने गैस हैं? 6। यहाँ तो कोई गैस है, लिक्विड है। यहाँ गैस कितना है? 7 मतलब 3.5 ना, अरे 7.5। तो बच्चों ये कितना है? 7.5।
है ना, क्या किया भाई सब। तो 7.5 इधर 6 है, माइनस करेगा तो कितना आएगा, -1.5 -1.5 आर टी। कैलोरी में है तो आर वैल्यू 2 ले लो। टेम्परेचर कितना है भाई 25, मतलब 298 केल्विन, 298 केल्विन। सॉल्व करेगा डेल्टा ई निकल जाएगा। कार्य पगला सबका किया हुआ है, क्यों नहीं बनाया तुम लोग। मैंने कहा किसी भी गैस डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा ई प्लस क्या होता है यार, तुम लोग कितनी बार गलती करोगे। सवाल नहीं बना रहे हो तो हाथ नहीं खुलेगा, सवाल बनाओगे तभी हाथ चलना शुरू होगा। अब डेल्टा निकालना है, डेल्टा डेल्टा पीवी, डेल्टा पीवी क्या होगा, डेल्टा एन जी आर टी। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, डेल्टा एन जी हो जाएगा। हैं, ठीक है, मजा आया बच्चों। जब भी अच्छा आर की वैल्यू में राजा कंफ्यूजन हो रहा है, पता नहीं क्यों कंफ्यूजन हो रहा है। चलो मैं जब यहाँ खड़ा हूँ, अच्छा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कितनी बार कंफ्यूजन होगा। देखो आर की वैल्यू ध्यान सुनो, अगर तुम्हें आंसर चाहिए जूल में तो आर की वैल्यू लो 4.8 अगर तुम्हें आंसर चाहिए जूल में तो आर की वैल्यू क्या लोगे 8.304। कैलोरी में चाहिए तो क्या लोगे 2 कैलोरी लोगे। ओके, क्या इतना आसान है, राइट। जूल में एसआई यूनिट में चाहिए तो ये ले लोगे, कैलोरी में चाहिए तो 2 ले लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अभी हम लोग आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर। कमन बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वाओ ओह माय गॉड, टेम्परेचर इज कांस्टेंट आइसोथर्मल। इसमें बहुत सारी बातें करनी है हमको यार, टाइम भारी कम है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा बच्चों तो ये ध्यान रखो डेल्टा यू और डेल्टा एच की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये बात तो तुम समझ लो, दोनों क्या हो जाएगा 0। आइडियल गैस के लिए ना डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है एन सी पी डेल्टा टी। डेल्टा टी 0 है यार, आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, और डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी 0 है यार, मामला खत्म हो गया है ना, ये दो होगा 0, ठीक है। अब चले आओ तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, क्या कहते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्लू। जब ये 0 हो गया, आइसोथर्मल मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया मतलब जितना हीट होगा और वर्क डन 0, क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। मतलब अगर सिस्टम ने काम किया, एनर्जी खर्च किया, तो कोई उसको एनर्जी दे रहा है समझ रहे हो। अगर सिस्टम ने काम किया, एनर्जी खर्च किया, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, जितना लॉस कर रहा सिस्टम उतना ही गेन हो जा रहा है। ऐसा नहीं होगा तो आइसोथर्मल नहीं हो पाएगा। आइसोथर्मल मतलब क्या हुआ, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब क्या हुआ उसके इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ, अगर सिस्टम के भाई मेरे जेब में मान लो कितने पैसे हैं, देखता हूँ कुछ पैसे होंगे, वैसे नॉर्मली रखता नहीं हूँ, ये 50 रुपया 60 70 रुपये है मेरे पास, राइट 70 रुपीज़। तो अगर मेरे पास 70 रुपीज़ हैं, राइट, तो मैं मार्केट में गया और कुछ खाया पिया पार्टी शार्टी किया और बाद में भी 70 रुपीज़ रह गए यार, ये 10 50 रुपये वो, तो कहेंगे कैसे हुआ, आप खाए पिए कैसे। इसका मतलब ज़रूर है कि आपको बीच में आपके बाबूजी मिल गए हैं और वो पैसा दिए हैं आपको और उतने पैसे से आप खर्च कर दिए हैं, है ना। तो हाँ, तो मेरे पास 70 रुपये हैं और खाए पिए 70 रुपये ही रह गया। मतलब जितना का हम खाए हैं उतना हमको बाहर से मिला है ना, बाहर से मिला है, कोई दिया है, बाबूजी दिए हैं, कोई दिया है, बात समझ में आया तुमको। मतलब यही है कि मेरी आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है तो मेरी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है कांस्टेंट है, जितना हम काम करेंगे उतना हमें मिल जाएगा। हम पे अगर कोई काम करेगा, कोई अगर मुझे दिया पैसा और फिर भी मेरी इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ी, मतलब जितना दिया उतना हमने खर्च कर दिया, वाओ दैट्स ग्रेट। लेट्स सी नाउ। तो भैया अगर ऐसा हो रहा है तो ऑन कंप्रेशन में क्या होता है, सिस्टम के ऊपर काम होता है, सिस्टम के ऊपर काम होगा
तो सिस्टम की एनर्जी बढ़नी चाहिए, तो सिस्टम के ऊपर काम हुआ ना, तो सिस्टम उतना हीट लॉस कर दिया, है ना। मतलब समझो जितना ये दोनों इससे कॉम्प्लीमेंट्री है, ध्यान समझो, वर्क और हीट कॉम्प्लीमेंट्री है, ये जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा। तो कंप्रेशन में क्या होता है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है तो ये प्लस हो जाएगा, तो हीट का लॉस हो जाएगा। देखो हीट रिलीज, ओहो, ऑन कंप्रे, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं आजकल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने लग गया एग्जाम में। तो हीट रिलीज, वर्क डन ऑन द सिस्टम उतना ही हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, समझ गए ना आप मेरी बात। हीट रिलीज मतलब निगेटिव हो गया, और वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब पॉजिटिव हो गया। इनमें जोड़ोगे जीरो होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। और ऑन एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंड हो रहा है तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही, लॉस हो रही है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हुआ, ये निगेटिव। तो कोई एनर्जी दे रहा होगा इसको, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम ऑन दिस, हाँ, तो सिस्टम ने एनर्जी लिया, ठीक है। तो आइसोथर्मल वो प्रोसेस है जिसमें एंथैल्पी चेंज जीरो, इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो, बहुत आसान है और इससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडियल गैस कंप्रेशन एक्सपेंशन। ओके, हम ये वर्क डन सीखने जा रहे हैं। रेडी बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा होता है, जिसमें पी एक्सटर्नल जो होता है वो पी इंटरनल से थोड़ा सा वेरी करता है, थोड़ा सा, पिद्दी भर। हमने खूब डिस्कस किया है इसको, रिवर्सिबिलिटी मैंने तुम्हें खूब पढ़ाया है। एक दिन पढ़ाया, तुम कहो सर कम समझ में आया, दोबारा फिर लो और बताओ, दोबारा फिर पढ़ाऊँ, क्या नहीं सर वो समझ में आ गया, है ना। थोड़ा वेरी करता है। तो वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। माइनस पी एक्सटर्नल क्या होगा, तो कह सकते हो माइनस पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी इंटू डी वी। बहुत ध्यान समझो बच्चों, ध्यान समझना, अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो कंप्रेशन होता है, मतलब एक्सटर्नल कब ज़्यादा होगा, जब प्लस डी पी होगा, है ना। और अगर इंटरनल ज़्यादा होगा तो एक्सपेंशन होगा। दैट्स वेरी इजी। नाउ ये डीपी की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम, इसको ज़्यादा तोड़ दो तो देखो माइनस पी इंटरनल डी वी प्लस माइनस डी पी इंटू डी वी। ये दो गधे जो हैं आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं छोटे छोटे गधे जब आपस जुड़ते हैं ना तो बड़ा गधा बनता है, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो गायब हो जाते हैं। देखो ये देखो, डी पी बहुत छोटा, डी बहुत छोटा, मल्टीप्लाई करोगे टेंस टू जीरो हो जाएगा। दिस वैल्यू इज टेंस टू जीरो। मतलब बताना चाहता हूँ कि डी डब्ल्यू रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर होगा तो डेफिनेशन यही है पी एक्सटर्नल डी वी, बट ये हो जाता है माइनस पी इंटरनल डी वी के बराबर। ओके, क्यों ऐसा हो गया, बिकॉज पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में डिफरेंस बहुत कम है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस उसको बोलते हैं जो हर इंस्टेंट पे ऑलमोस्ट इक्वल होता है। कौन सा, एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर। सो वी कैन इजिली रिप्लेस इंटरनल विद एक्सटर्नल, एक्सटर्नल विद इंटरनल। ओके, ये हमारा हो गया। नाउ सी, समझ में आ रहा होगा, तुम लोग बाद में वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ों को नोट कर लेना, ठीक है। देखो हम लोग कहाँ पहुँचे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी इंटरनल डी वी, हमें वर्क डन निकालना है। आइडियल गैस है क्या, हम लोग पता है बच्चों, आइडियल गैस में क्या होगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो वी पी इज इक्वल टू एन आर टी। हमको पी लिखना है, P इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी हो जाएगा। टेम्परेचर देखो कांस्टेंट है, ध्यान रखना, और ये हम कंप्रेशन एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट होगा, आर तो कांस्टेंट है ही और टेम्परेचर कांस्टेंट है ही, ये हो गया कांस्टेंट हो गया, है ना। मतलब एन आर टी की जो वैल्यू होगी वो मान लो प्रेशर P2 V2 हुआ या P1 V1 हुआ, इन सब के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, और एक्सपेंशन कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, देयरफॉर एनआरटी विल बी कांस्टेंट, सो दिस विल बी इक्वल टू P2 V2 एंड P1 V1। क्लियर, राइट। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल पी इंटरनल टू डी वी, ये क्या आ जाएगा, माइनस पी इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी डी वी। इसको हम डी डब्ल्यू है इंटीग्रेट कर लेते हैं,
हमको वर्क डन टोटल निकालना है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी कौन है, माइनस एन आर टी कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो और ये इंटीग्रेट कर दो डी वी बाई वी, इनिशियल वॉल्यूम V1 से लेके V2 तक, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन V2 बाई V1। ये हमारा आ गया वर्क डन। वाह, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन V2 बाई V1। ये सबको समझ में आ गया बच्चा लोग, बताओ रे, बोलो बच्चों, बोलो भारत माता की, बोलो रे, समझ में आया? इतना आसान है ना, खेलते कूदते कर लिए हम लोग। गुड, बहुत अच्छे। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखो भाई, सी हियर, हमको मालूम है, देखो यहाँ V2 बाई V1, V2 बाई V1 फ्रॉम हियर V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 बाई P2, सो वी कैन राइट वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन V2 बाई V1, और वी कैन राइट P1 बाई P2। ओके, ये डिपेंड करता है सवाल में दिया क्या है। मान लो सवाल में दिया तो हम ऐसे लिख सकते हैं nRT इज इक्वल टू P2 V2 P1 V1, सो वी कैन रिप्लेस nRT, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाई माइनस P2 V2 ln P1 बाई P2, ऑल आर इक्वल, और वी कैन से माइनस P1 V1 ln V2 बाई V1, वट एवर यू कैन राइट। ओके, ठीक है, आप ऐसे वर्क डन निकाल सकते हो। एंड यू नो, for calculation we have to change ln to log form, so for conversion to log form means log to the base 10, we should just use minus 2.303, we have discussed it, P2 V2 into log P1 by P2, so just multiply by this factor 2.303 to convert ln to log, so that we can see the logarithmic table है बच्चा लोग। ठीक है, भूलना नहीं है, बाद में इसको वीडियो पॉज करके अपना नोट्स बना लेना। और क्या लिखा हमने, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन V2 बाई V1 और माइनस 2.303 nRT लॉग। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्या, कई बार लिख करके, लग तो ऐसा ही रहा है ना? बहुत बढ़िया। अगर एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन की वैल्यू क्या आती है बच्चों, निगेटिव आती है, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम V2, एक्सपेंशन मीन्स वॉल्यूम V2 इज ग्रेटर देन V1, एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम V2 इज ग्रेटर देन V1, तो V2 बाई V1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। ये ग्रेटर देन 1 होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस, तो वर्क डन आ जाएगा माइनस नेगेटिव। वाओ, ये तो मैच कर रहा है भाई, तो बढ़िया है नहीं। देखो, अगर एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो V2 इज ग्रेटर देन V1, सो V2 बाई V1 इज ग्रेटर देन 1, सो लॉग ग्रेटर देन 1 मीन्स इट्स पॉजिटिव वैल्यू, सो पॉजिटिव एंड हियर इज नेगेटिव। बट इन केस ऑफ कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन हो रहा होता है बच्चों तो वॉल्यूम घट जाता है, V2 इज लेस देन V1, सो V2 बाई V1 इज लेस देन 1, लेस देन 1 होगा तो माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। यस, सो दैट्स व्हाट वी आर डिस्कस्ड। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन आया है सिर्फ और सिर्फ कब होगा, रिवर्सिबल के लिए, आइसोथर्मल के लिए होगा। जब आइसोथर्मल हो, कांस्टेंट टेम्परेचर हो, रिवर्सिबल होगा, then only we can replace P external by P internal। ये रिवर्सिबल के लिए ही कर सकते हैं, और तभी हम P internal को nRT by V की जगह लिख सकते हैं। we can write this expression only if it is reversible, and we can write this expression only if gas is ideal। so the whole relationship we have here is not for isothermal irreversible or isothermal reversible and real gas. No, we could not do that. We should know it. It is derived for the case reversible isothermal ideal gas. Okay.
भूल जाता है ना, और कैसे याद रहेगा, सवाल में याद आ जाएगा ना, सवाल बनाओगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, मज़ा आया। अब बाकी बातें मैं तुम्हें अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि बाकी बहुत सारी बातें हैं, बताऊंगा तो जल्दी होने लग जाएगा और मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, मैं एक चीज़ बताया था तुम लोग की बहुत भारी इच्छा है, जनता की भारी डिमांड पर इंडिकेटर डायग्राम, जनता की भारी डिमांड पर ना, है ना। सी अभी इंडिकेटर डायग्राम हमको पता है, PV इज इक्वल टू NRT। इंडिकेटर डायग्राम मतलब डायग्राम विच इंडिकेट्स नंबर ऑफ थिंग्स। ये बेसिकली इंडिकेटर डायग्राम बच्चों, PV डायग्राम को इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स वर्क डन एंड एफिशिएंसी ऑफ मशीन, मोटर, रेफ्रिजरेटर, डिफरेंट थिंग्स, दैट इज नॉट द इन द आवर पार्ट। तो ये इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करता है, आउटपुट को इंडिकेट करता है, दैट इज व्हाट, है ना। लेट्स सी हियर, अब आइसोथर्मल है मतलब बच्चों ये कांस्टेंट होगा, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, वाव। सो P इज इक्वल टू K बाई वी। ध्यान रखो यहाँ पे जो ड्रॉ करते हैं ना, P एक्सटर्नल ड्रॉ करते हैं, किसको, P एक्सटर्नल, बिकॉज इट्स इंडिकेटर डायग्राम। वाई P एक्सटर्नल, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV, दैट्स वाई, राइट। तो यस, बहुत अच्छे, ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा हो जाएगा, है ना, P ऐसा। अगर बच्चों सी है, अगर मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, अब कोई A से B गया तो ये क्या हो रहा है, वर्क डन A से B, AB क्या हो रहा है, ये एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, निगेटिव आएगी, है ना। हम ऐसे कहेंगे कि इनिशियल वॉल्यूम इज V1, फाइनल वॉल्यूम इज V2, तो वर्क डन इज इक्वल टू A to B इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT, ये हमको वैल्यू दिया जाएगा log V2 by V1। we are seeing here V2 is greater than V1 because it's case of एक्सपेंशन हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और एरिया क्या होता है, वी हैव स्टडीड सो फार दैट एरिया इज द ग्राफ अंडर PV डायग्राम। हमने उसको डिस्कस किया आप लोगों से बहुत डिटेल में, ये जो एरिया होगा इसके अंदर ना वही वर्क डन हो जाएगा, और इसी एरिया की वैल्यू इस इक्वेशन से आता है बच्चों, वाह मज़ा आ रहा है। इसी की वैल्यू इससे निकल के आएगा, और V2 इज ग्रेटर देन V1 तो वैल्यू निगेटिव आएगी। और यही अगर अपने मतलब अगर वर्क डन A to B जो होगा मैग्नीट्यूड, उतना ही वर्क डन होगा अगर B to A आते हैं, बट दोनों का साइन क्या होगा, उल्टा उल्टा, मतलब कोई इधर से इधर गया और कोई इधर से इधर आ गया, ये क्या होगा बच्चों, कंप्रेशन, ये क्या होगा, एक्सपेंशन, बट बोथ आर रिवर्सिबल, क्योंकि ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, स्लो चेंज हो रहा है, इट्स ए रिवर्सिबल। ओके, तो जितना A B में वर्क डन होगा उतना ही B A में होगा, बट A B में एक्सपेंशन हो रहा है तो इट्स नेगेटिव, ये ऐसा होगा तो पॉजिटिव, ये रिवर्सिबल है। ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिल्कुल सही बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तुम लोग तो यार गजब सीखते हो भाई, तुम लोग इतना बढ़िया सीखते हो, कमाल के। हाँ, कि मुझे लगता है कई बार मुझे लगता है कि मैं बच्चों को ऑफलाइन सिखाता हूँ तो कई बार उतना अच्छा नहीं सीख पाते। इसका मतलब ये कमाल मेरा नहीं है, ये कमाल तुम लोग का है, तुम लोग गजब सीखते हो, बहुत बढ़िया। तो तुम्हारे सिलेक्शन में सिर्फ एक ही चीज़ है बच्चों, ये तुम घर जाके अपनी कॉपी में लिखना और कसम खाना, और नहीं तुम मेरे चेले नहीं हो मैं तुमको अस्वीकार कर दूंगा ना, मेरे चेले हो तो कसम खाना है कि आज से सोते उठते जागते जब भी मतलब धुन में रहो सवाल बनाने के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, और बेटा ये कर लिए ना, बिटिया ये कर लिए ना, बस ठीक है सेलेक्ट हो गए, मेरा आशीर्वाद लग जाएगा। मैं सिद्ध पुरुष हूँ, ध्यान रखना, मैं जो बोलता हूँ वो हो जाता है, मैं जो बोलता हूँ वो हो जाता है, मैं हमेशा देखा हूँ। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि सवाल बनाओ और तुम अगले साल अपने आप को IIT में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में, एम्स वगैरह में हर जगह पहुँच जाओगे, गारंटीड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखो, मेरी बातों को पालन करते रहो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।